صلاح ہے کیا؟ شریر کی صلاح آپ کے بدن کو گمراہی کی طرف لے کر جانے کے لیے ایک قدم ہے۔ شریر کہا کس کو گیا ہے؟ شریر اس آدمی کو کہا گیا ہے جس کی زندگی گناہ میں ہے، جس کی زندگی بدکاری میں ہے، جس کی زندگی میں بہت سے گناہ ہیں، اور وہ کہے بھائی پارس صاحب آج تو سی بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو۔ ایک ایسا بول جو کسی کی تعریف کے لیے ایک ایسا لفظ بول دیا جائے اور اس کی زندگی میں گمراہی آ جائے، اسے کہتے ہیں شریروں کا کام، اسے کہتے ہیں شریرک سوچ، اسے کہتے ہیں ڈیمونک ایفیکٹ، اور یہ شریر کا کام ہے۔ یوسف بہت خوبصورت تھا اور لوگ اس کی خوبصورتی پر اس کی تعریف کرتے تھے اور وہ چھپتا پھرتا تھا۔ اب اس کا خوبصورت ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ خدا آسمان سے جسے جو چاہے روپ دے، لیکن اس کا خود کو بچانا، خود کو سیف کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ داؤد بہت خوبصورت تھا، داؤد کی زندگی میں گمراہی آ گئی، وہ شریر کی صلاح پر چل گیا، اور اس کے صلاح کار نے، وہ بادشاہ تھا، داؤد ایک بادشاہ تھا، اور اس کے صلاح کار نے کیا کروایا؟ داؤد کے ہاتھ سے سپہ سالار کو قتل کروا دیا۔ آپ جانتے ہیں کتنے لوگوں نے بائبل کی سٹوری کو پڑھا ہے؟ جب اس نے اپنے سپہ سالار کی بیوی کے ساتھ شادی کی، اس کے صلاح کار نے اسے صلاح دی تھی، اور یہ شریرک سوچ خداوند کے سامنے پہنچی اور خداوند نے داؤد کو اس کے تخت پر سے اتار دیا۔ اب یہاں پر ایک آیت ہے اور اس کے بعد ایک خوبصورت وعدہ ہے۔ اب ان دو آیتوں کے اندر خدا آپ کو ایک بہت بڑی برکت دیتا ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر ایک طرح کا کردار ہے اور دوسری طرح کی گواہی۔ ذرا غور سے سنیے 3 آیت کو، لیکن دوسری آیت میں سے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ جو کچھ وہ کرے وہ اچھا ہوگا، وہ پھلے گا، بڑھے گا، اور خداوند اس میں اس کو بلیس کرے گا، خداوند اس میں اس کی ترقی دے گا، خداوند اس میں اس کے ساتھ رہے گا، اور وہ اپنی زندگی میں بڑھتے پھلتے اور پھولتے چلے جائیں گے۔ لیکن مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اگر آپ کو مبارک بننا ہے، اگر آپ کو راست باز بننا ہے، اگر آپ کو خداوند کا چنا ہوا بننا ہے، اگر آپ کو بننا ہے خداوند کا خادم، اگر آپ کو بننا ہے ایک ڈسائپل، اگر آپ کو بننا ہے خداوند یسوع کا عزیز، آپ کو بننا ہے خداوند یسوع کا شاگرد، پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو شریروں کی صلاح پر نہیں چلنا۔ لوگ کہتے ہیں ڈونٹ بی اے میٹر، کوئی میٹر نہیں کرتا۔ آپ کس در پر کھڑے ہو کر کیا سوچتے ہو، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ کھلی کتابوں کی مانند ہیں۔ اس چرچ کے اندر چرچ کبھی بھی بلڈنگ سے بڑا نہیں ہوتا، چرچ کبھی بھی ایک بڑے خاتے سے بڑا نہیں ہوتا، چرچ کبھی بھی کلیسیا سے بڑا نہیں ہوتا۔ چرچ خداوند کے معجزوں اور خداوند کے کاموں سے بڑے ہوتے ہیں۔ معجزے اور شفائیں جو ہوتی ہیں اس سے مذہبیں بڑے ہوتے ہیں۔ مذہبہ کبھی بھی بڑا ایسے نہیں ہوا کہ وہاں پر بہت بڑی بلڈنگ اور بہت بڑا مذہبہ ہے، مذہبہ اپنے کاموں سے بڑا ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ یہاں پر لوگوں کی زندگی کھلی کتاب کی طرح، کبھی کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھ لینا۔ من اور عقل اور سوچ جب ایک ہو جاتی ہے تو معجزہ ہوتا ہے، اور شریر شرارت کرتا ہے اور ابلیس اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ بتھیرے لوگ جب شفا پانے کو ہوتے ہیں وہ شریرک سوچ پر چلے جاتے ہیں، اور نہیں چھڈ وہ ایڈا وڈا پادری ہوندا تے کمریاں دے وچ ہی رہندا،
ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। आप सोचो कि आप खुदावंद में आपको रहना है, खुदावंद में चलना है, फर्क नहीं पड़ता। जब मैं खुदावंद में, मैंने कहा खुदावंद मैंने तेरे साथ रहना, मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मुझे बड़े बड़े चर्च नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे बता मुझे क्या करना है। मुझे कैसे चर्च में ले गया जिसके नाम से लोग नफरत करते थे, जिसके साथ खड़ा रहने से लोग घबराते थे, और मैं वहां पर बैठ गया, नीचे बैठा, मुझे कहने लगे ये बंदा कौन हैगा। मैंने कहा मैं सीखने आया हूं। कहते पहले अकल सीख, क्योंकि मेरे हाथ में बाइबल थी और उन्होंने मुझे दुआ के लिए बुलाया और मैं बाइबल धड़ से नीचे रख के चला गया। मुझे उन्होंने कहा पहले अकल सीख फिर खादम बन। तो ये पता नहीं खुदा के कलाम का एहतराम क्या है। मैंने कहा सॉरी माजत, मुझे नहीं पता, मुझे अंदाजा नहीं है। मैंने समझा चर्च का ये जो फर्श है, चर्च की ये चेयर जो है, चर्च का ये मजबा, ये पाक है। उन्होंने कहा ये तो सही सोचता है, इसलिए मैंने कहा मैंने चर्च के फर्श पर इस बाइबल को रख लिया कि ये मजबा पाक है, ये जगह पाक है। उसने कहा तुमने सही सोचा है, उन्होंने कहा तुमने सही सोचा, लेकिन गौर कर कि खुदावंद के कलाम के लिए एक अलग सी जगह होती है जहां पर खुदा का कलाम ही सिर्फ रहता है। और अगर आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हों, वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड हो, वहां पर उसका बॉयफ्रेंड हो, वहां पर उसकी फियांसी हो, वहां पर कोई और मामलात हो, और कलाम ना हो, तो मानो बताओ आपका बदन कैसा है। आपका बदन एक बंजर बिल्डिंग की तरह, जहां पर खुदा के मजबा के लिए, खुदा के कलाम के लिए जगह नहीं है। और आप वो दरख्त हैं जो सूखे हुए हैं, आप वो दरख्त हैं जो नदी के किनारे पर नहीं लगाए गए, आप वो दरख्त हैं जो मैदानों में सूखे में हैं, और आपकी लाइफ में कभी हरियाली, कभी खुशहाली, कभी बहाली नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका मन कठोर है, आपका मन सख्त है। किसके लिए? किसके लिए सख्त है? खुदा के कलाम के लिए। और आपकी जिंदगी में बांझपन है, बंजर है जमीन दिल की, और आप शरीरों की सलाह पर चलते हो। शरीर की सलाह क्या है? यार तेरे घर का गुजारा नहीं हो रहा भाई, मैं तेन को सलाह देना, क्यों ना तू शाम को 6 बोतल वेच लिया कर, मैं क्रिश्चियन हाँ, मेरे नाम से परमट बन जाएगा। अल्लाह 5-6 बोतलों का परमट तेरे नाम से तेनू देना वा, मेरे नाम का परमट और 6 बोतलें कौन बेचेगा? तू बेच, तेरा कारोबार चल जाएगा। यार तेरे बच्चे बड़े परेशान। आपकी सोच शारीरिक सोच है, आप शरीरों की तरह सोच रहे हैं, ना कि रास्तबाजों की तरह। आप एक शारीरिक आदमी हो, क्योंकि आप किसी की जिंदगी में बहाली नहीं, बल्कि एक जिंदगी को तबाह करने का मंसूबा बना रहे हो। आप किसी के पेट को पालने के लिए उसकी मदद नहीं कर रहे, आप उसके पेट को पालने के लिए उसकी मदद नहीं कर रहे, आप उसको जहन्नम वासल कर रहे हो। और आपकी सोच जो है वो शारीरिक सोच है, आप जो सोचते हैं वे शैतानी सोच है। आप एक पेट भरने के लिए लोगों को नशा बेचने के लिए तैयार करो। लोग कहते नजर सलेमान मसीह उरे आ भाई, यार तेरा तू तो मसीह है, तेरा परमट ना बनवा लवा, तू कुछ नहीं करना, तू बस मेरे नाल जाना करना है, तेनू महीने का 5000 मिल जाएगा। अगर आपके नाम के साथ मसीह है तो वहां पर इनकारी कर दीजिए और बताइए कि खुदावंद के कलाम में लिखा है शराब नौशी करने वाले कुत्ते हरामकार खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे। मैं खुदा का बंदा हूं और उसका नाम मेरे नाम के साथ लिखा हुआ है, मैं क्यों कर अपने आप को तेरी हाथों में, तेरी सुपुर्ददारी में दूं। आज शारीरिक सोच है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, अगर किसी की किड़ है, किसी को दुख है ना, किसी को मिसाल के तौर पर मान ले मुझे सैमुअल साहब के साथ कोई प्रॉब्लम है, मेरा इनके साथ कोई क्लेश चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इनके बच्चों को बिगाड़ना शुरू कर दूंगा। इनके बेटे को कहूंगा भाई इधर आ, फड़ नंबर, फलां बेटी का नंबर है, फलां लड़की का नंबर है, तो ये गलबात कर, ए फड़ उरे आ भाई, ए फड़ 2 सिगरेट बनाया कि तेरा कि मेरा, आ यार शाम को अज 4 पैग ला लीए। वो कहता नहीं मैं शराब नहीं पीता, और छट परा है भी कोई गल, बच्चा बच्चा पींदा पिया। ये कौन सी सोच है? शारीरिक सोच है।
اور لکھا مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. جویں ساڈے چونک دے وچ نیلیاں پیلیاں یا پینٹا پا کے سٹائلش منڈے کھلوتے ہوندے, انہاں نوں پتہ کادی لوڑ ہے گی؟ کوئی دس سکدا انہاں نوں کادی لوڑ, کس چیز دی لوڑ ہے جی انہاں نوں؟ سلیمان صاحب کہندے نے, سلام جی سر ویلکم. سلیمان صاحب کہندے نے جی انہاں نوں لوڑ ہے چانٹیاں لپڑاں دی لوڑ ہے. بائبل بتاتی ہے اگر تیرا بچہ گردن کش ہو, اور تیرا بچہ اگر گردن کش ہو, اپنے ہاتھ میں سوٹی لے, اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے, اسے مار, تیرے مارنے سے وہ مر نہیں جائے گا. اگر تو اسے جہنم میں جانے سے روک سکتا ہے تو روک لے. آپ کی لائف, آپ کی زندگی خداوند میں فروٹفل تب ہوتی ہے جب آپ راست بازوں کی طرح سوچنا شروع کرتے ہیں. میں ڈرائیور ہے گا وہاں, اب بھائی تیل پا دے 10 لیٹر تے پرچی بنا دے 20 لیٹر دی, 10 لیٹر پا دیو جی پرچی بنا دیو 20 لیٹر دی. صاحب نے پوچھا 15 دن بعد, یار اب بھائی شہباز صاحب اے گڈی دے وچ حالے دا ٹینکی فل کرائی ہے, پٹرول کدھر گیا؟ صاحب جی ہن اے سی چل رہا نا, گرمی ہے گی اس لیے گڈی ذرا پٹرول چوک رہی ہے. یہ 10 لیٹر پٹرول جو ہے یہ وہ والی گاڑی چوک رہی ہے جو گاڑی چلا رہی ہے. آپ کے گاڑی کا پہیہ اسی لیے جام ہے کیونکہ آپ اپنے باس کا برا سوچتے ہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اے نوکر اپنے صاحب کے تابع رہ, اے مالکو اپنے نوکروں سے ایسے کام, ایسے ان کے ساتھ رہو جیسے تم اپنے بچوں کے ساتھ رہتے. اور نوکر کو کہا کہ اپنے مالکوں کے تابع رہو. اس لیے ہم لوگ خداوند کی حضوری میں فروٹفل نہیں ہیں, اس لیے ہم خداوند کی حضوری میں آج تک ترقی نہیں کر سکے. میرا باپ سرکاری ملازم سی, میں سرکاری ملازم ہاں, میرا بیٹا سرکاری ملازم ہے. پاری صاحب مینوں دسو ساڈا گھر کیوں نہیں بندا؟ بھائی کارپوریشن چ لگا ہویا ہے, سرکاری گڈی چلانا ہے, ایک ٹینکی دے نال ایک ٹینکی تو ویچ چھڑنا ہے. آسمان کا خدا آسمان سے دیکھ رہا ہے, کوئی زمین پر تجھے دیکھے یا نہ دیکھے. کارپوریشن والے احتجاج ہی نہ کر دین میرے تے. چلو سانو کیڑی پرواہ, ساڈی گلی دا کوڑا چک دے کوئی نہیں, سانو پرواہ نہیں ہے. لیکن سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. بائبل بتاتی ہے آپ کو ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جس سے آپ کا خدا آپ سے ناراض ہوتا ہے. آپ کی لائف میں آپ 15,000 کو 20,000 کو 30,000 کو اہمیت دو جو آپ کے لیے مخصوص کیا گیا آپ کے مالک کی طرف سے. اگر آپ خداوند میں اس 30,000 کو لیتے ہوئے, ایک مالک کے ہاتھ سے 30,000 آپ نے سیلری لی اور آپ اس 30,000 کو ڈیوائیڈ کرتے ہو, میں نے 10,000 قرضہ لیا ہے, میرا 10,000 بل ہے, میرا 15,000 روپیہ کرایہ ہے اور مجھے 5,000 اور چاہیے, لیکن اس بار میرے اوپر 20,000 روپے کا قرض ہے. آپ سوچتے ہیں کہ یہ 20,000 کہاں سے آئے گا؟ مجھے 20,000 پورا کرنا, لوٹ مار کر لو, تیل بچا لو, کسی کی سبزی میں سے پیسے رکھ لو, میڈم کے ساتھ گئے ہیں اس کا سوٹ مہنگا بتا دو اس کو, اس کے جوتے مہنگے بتا دو اس کو, آپ کوئی بھی کام کر لو, آپ 20 کے ساتھ 20 کے نیچے آ جاؤ گے جب آپ کسی کو لوٹ کر اپنے گھر کا قرض اتارنے کی کوشش کرو گے. آپ اس 35,000 کو اپنے گھر میں لا کر اس کے لیے دعا کرو اور دعا کرنے کے بعد جس شخص کا آپ نے 20,000 دینا اس سے کہنا 30 دن اور انتظار کر لے. اب خداوند مہیا کرے گا آسمان سے 30 دن انتظار کر, اگلی سیلری پہ میں تجھے تیرے پیسے لوٹا دوں گا. دعویٰ کرتا ہوں میں یہاں سے خدا کے مذبح سے کھڑا ہو کر 30 دن راست بازوں کی زندگی جینا. آپ کے گھر میں نہ تو کوئی بیمار ہوگا, نہ آپ کی گاڑی کا نقصان ہوگا, نہ ہی آپ کے بل بڑھ کر آئیں گے, بلکہ خداوند اس 35,000 میں ایسی برکت دے گا, آپ کا قرض بھی اترے گا اور 35,000 آپ کے لیے فروٹفل ہوگا. اور 20,000 ساڈا پتہ کیویں نکلدا جی, 2,000 تیل جی بچا لیا, شام ہویا بچہ بیمار ہویا ہے, ڈرپ لگ گئی, کنے جی 2500 روپیہ ڈاکٹر نے مانگ لیا, 500 ساڈا ہاتھوں جا رہا ہے. الٹا 3 دن دا ڈپلوما ساڈے ہاتھ چ لے کے پرچی پڑھاتی ڈاکٹر نے, 3 دن ڈرپاں لواؤ جی انہوں ڈینگی ہو گیا. ہم 2,000 7,000 کر کے دیتے ہیں لوگوں.
लिखा है तेरे दाएं हाथ 10,000 गिर जाएंगे लेकिन तुझे जर ना पहुंचेगी। आप खुदा के इस वादे में शक तो ना करो, हम इस वादे में शक ना करें, बल्कि रास्तबाजों की तरह इस वादे को सोचें। पारस जी निकाल दो जी, निकाल दो, इस तरफ निकालो, इसको थोड़ा सा आगे करवाओ, जनता को थोड़ा सा आगे करवा लेते, इस तरफ निकाल दे, पीछे निकाल दे। शहबाज साहब आप आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे हो जाओ मेरी बहन, तो आज की जगह बन जाए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इसलिए कह रहे हैं इस साल चर्च खुदावन में हम लेंगे और खुदावन आसमान से मदद को सहायता को जारी सारी करेगा। हालेलुया। खुले खुले हो जाओ, जगह काफी, अगर मैंने पीछे जाना पड़ेगा तो मैं चला जाऊंगा, डोंट बी वरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किन्या लोगों को गर्मी लग रही है? अपना हाथ उठाना जिन्होंने गर्मी लग रही है, हीट महसूस हो रही, तुसी मेरे लिए प्रेयर करनी है। अगले साल तो वसी चर्च के अंदर बिठावांगे, क्वेर दुआ करो तुसी। हालेलुया, हालेलुया। वो 2000 हमारी जिंदगी से 7000 होकर निकलता है। हमारा 10 दिन बाद 15 दिन बाद लॉस हो जाता है। अभी बच्चा ठीक हुआ है, हम बीमार हो गए, मैं बीमार हुआ हूं, मैं सही हुआ हूं, बीवी बीमार हो गई। आपको अपनी जिंदगी में अब सही कदम रखने की जरूरत है। खुदावंद कहता है तुम कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए खुद फिक्र करेगा। खुदा कहता हवा के परिंदों को देखो, ना वो बीज बोते हैं ना काटते हैं, मैं तेरा खुदा उनको खिलाता हूं। मैं तेरा खुदा उनको क्या करता हूं? खिलाता हूं। हम खाने के लिए क्यों फिक्र करते हैं? हम खाने के लिए क्यों फिक्र करते हैं? मेरे अजीजों, खाने के लिए फिक्र ना करो, बल्कि खुदावंद के वादों में उसको हमेशा से याद रखो। पैदाइश की किताब में एक वाकया दर्ज है। इब्राहिम और लूत दोनों अजीज हैं, आपस में भाई हैं दोनों की सोच में, दोनों की सेंस में फर्क है, दोनों की सेंस में फर्क, और खुदा के हाथ के नीचे हैं दोनों। एक को खुदा ने बहुत बरकत दे रखी है और दूसरा उसके साथ रहने की वजह से बाबरकत है। अब उन दोनों के पास माल मुआशी में बढ़ोतरी हुई। खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी और इब्राहिम के साथ उसका भतीजा लूत भी है, और खुदा इब्राहिम पर मेहरबान था, और इब्राहिम पर मेहरबान होने की वजह से खुदा ने लूत को और उसके घराने को भी बरकत दी, क्योंकि वो इब्राहिम के साथ ही सफर कर रहा था, वो भी खुदा के हुक्म के ताबे होकर चल रहा था। और बाइबल बताती है दोनों को खुदा ने मालो दौलत से नवाजा, मालो दौलत से नवाजा दोनों को। अब लोग कहते हैं हाँ जी असी तो यीशु मसीह नूं मानने। पारी साहब 50 बंदियां ने मैंने सवाल किया, कहते पारी साहब असी मसीह दे पैरोकार हां, मसीह गरीब क्यों रहंदे ने? मैंने कहा मसीही यीशु को वैसे जानते नहीं जैसा वो खुदा है। उन्होंने खुदावंद को जान तो लिया, लेकिन उनकी खुदाई के मुताबिक उसकी तारीफ और हमद ना की। कहते सी गरीब क्यों? हाँ जी, घर ही नहीं बनता साडे को। इब्राहिम के पास कोई घर नहीं था, और खुदा ने से कहा जो मुल्क मैं तुझे देता हूं तो वहां पर चला जा, और वो निकला, और खुदावंद ने उसे मिस्रियों के बादशाहों के दिल भी इब्राहिम के लिए खोल दिए। जब वो मिस्र में आया, और देखना बात को सुनना गौर से, बात को गौर से सुनना भी। इब्राहिम मिस्र में आया, और मिस्र का जो बादशाह था, मिस्र का जो हाकिम था फराउन, उसने इब्राहिम की बीवी को देखा और उसने लोग बुलवाकर उसकी बीवी पर हाथ डाला और उसे ले जाया गया। फराउन के महल में पकड़कर ले गए, और बादशाह ने उसकी बीवी के इवस, इब्राहिम की बीवी के इवस उसे मालो दौलत बहुत कुछ दिया। लेकिन खुदावंद में, अगर आप खुदावंद में हो, अगर आप खुदावंद में चलने वाले हो, आज आपको एक बात बताता हूं, अगर आप खुदावंद में चलने वाले हैं, आपके घर से एक तिनका भी नहीं, आपके घर से एक तिनका भी आगे पीछे नहीं होगा। आपके घर से एक तिनका भी आगे पीछे नहीं होगा मेरे अजीजों। उसकी बीवी को ले लिया गया, इब्राहिम की बीवी को छीन लिया गया जबरन। किसकी तरफ से? फराउन की तरफ से।
मिस्र में उसकी बीवी उसके हाथ से छीन ली गई, और रात को खुदावंद ने बलाएं नाजिल की। किसकी वजह से? इब्राहिम की बीवी को छुड़ाने की वजह से मुल्क मिस्र के हाकिम पर, उसके बादशाह पर बलाएं नाजिल की गई। और इब्राहिम क्या कहता है? भाई तार हिल गई, तार। इब्राहिम वहां पर गया, ओके ठीक है, ठीक है। इब्राहिम वहां पर गया मिस्र में, और वहां पर उसकी बीवी उसे छीन ली गई जबरन। अब खुदावन ने बुलाए नाज़र की। फराओन ने इब्राहिम को बुलाकर कहा, ये तूने क्या किया है? मेरे साथ इतना बड़ा दगा क्यों किया? तूने ये बात क्यों कही कि ये औरत मेरी बीवी ने, मेरी बहन है? उसने मिस्रियों के डर से ये कह दिया। कहता ये औरत मेरी बहन, और फराओन ने उसके हाथ से उसकी बीवी को छीन लिया। और खुदा ने, अच्छा इब्राहिम डर गया, लेकिन खुदा इब्राहिम के साथ था, जिसने वादा किया कि मैं अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। और खुदा ने आसमान से देखा कि इब्राहिम डर गया है, और खुदा ने मिस्र में आफतें नाज़िल करना शुरू कर दी। वही बादशाह जो पूरी दुनिया पर बड़ा हाकिम, बड़ा फाजिल, बड़ा ताकतवर था, खुदा के कहर को, खुदा के जलाल को देखकर इब्राहिम से माफी मांगता है। आप जिस दर पर काम करते हैं, वफादारी से काम करना, और खुदावंद आपके हाथों की कमाई को इतनी बरकत देगा, एक दिन आप अपने मालिक से ज्यादा अमीर होंगे। ये बाइबल का वादा है, बाइबल का वादा है। याकूब अपने मामू के घर में गया, वहां पर गुलाम बन के 24 साल खिदमत की, वफादार रहा। किसके साथ? खुदावंद के साथ वफादार रहा, अपने मालिक के साथ वफादार रहा। मालिक वफादार नहीं है, उसकी सैलरी काट लेता है, उसके माल को छीन लेता उससे, लेकिन खुदा वफादार, खुदा आसमान से देख रहा था। एक दिन खुदा ने याकूब को बरकत दी, और उसका मामू जो उसका मालिक था, वो उसके सामने आकर हाथ जोड़कर कहता है, तो मुझसे ज्यादा अमीर हो गया है, अब यहां से चला जाए, ऐसा ना हो कि मेरा माल भी तेरे पास आ जाए। अगर आप खुदावंद में मुखलिस हैं, आप वो दरख्त होंगे जो नदी के किनारे पर लगे हैं। और आप हमेशा, साल में 12 मौसम होते हैं पाकिस्तान में साल में 12 मौसम होते हैं। 4 होते हैं भाई, 12 महीने होते हैं। वो बाजी पीछे से कह रही है, लेकिन हम कहां पर हैं? साल में 12 महीने होते हैं और 4 मौसम होते हैं। लेकिन अगर आप खुदावंद में हो, आप पतझड़ के मौसम में भी हरे भरे और पत्तों से भरे रहेंगे। लेकिन आप पूरी दुनिया में काल हो, और तेरा खुदा तुझे सैर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तेरा खुदा तुझे भर देने की कुदरत रखता है, तेरा खुदा तुझे सैर करने की कुदरत रखता है। और बाइबल में यह वादा किया गया, खुदा कहता है अगर तो क्या करे, रास्तबाजों के जैसे सोचे, रास्तबाजों की तरह चले, रास्तबाजों की तरह देखे, रास्तबाजों की तरह बोले, तो तेरे खत्ते हमेशा भरे रहेंगे। हालेलुया। कौन चाहता उसके खत्ते भरे रहें? बस चेंज करो अपने आप को, खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाल दो, और वो आसमान खोलकर आपको बरकतें और बख्शिशें देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक शख्स मेरे सामने बैठा, कहता लोगों के बारे दस दियो, दसो मेरे बारे। मैंने कहा मैं भाई कुछ नहीं बता सकता, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, उठ जा मेरे सामने से। कहता नहीं आज दसेगा तो जाएगा। मैं कहा मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। कहता पारी साहब तुहानू बोतल पिया देंगे, दस दियो। मैं कहा हुण कीती ना गल काम दी है। मैं कहा तू चेक कर, बाइबल मेरे क्या खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश कभी ना कर। मैंने कहा मेरी बात सुन ले, अगर खुदा मुझे बताएगा तो तुझे बता दूंगा, अगर खुदा नहीं बताएगा तो तुझे कुछ नहीं बताना। मैंने कहता ये बताओ, जो भी प्रेयर तो करो, प्रेयर करो। फैसलाबाद में मेरे साथ पारस साहब थे, बच्चा बैठ गया, ओवर रिएक्ट करने लगा। ठीक है, एक बच्चा फैसलाबाद में भी बैठा, ओवर रिएक्ट करने लगा, बड़ा शोखा। मैंने कहा दुआ करे, कहता करो। उसका अब्बा कहता पारी साहब जरा आई दे तो की कहते हैं जन्म कुंडली खोलो। मेरा बड़ा तल्लुक उसके साथ। कहता पारी साहब इसकी जन्म कुंडली खोल दो। तो जब मैंने उस बच्चे के लिए दुआ की, मैंने उसकी जिंदगी में गुनाह को देखा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू देख मेरी बात को सुन। मैंने कहा
उस बच्ची का नाम खुदावन ने मुझे बताया, मैंने उस बच्ची का नाम बता दिया। मैंने कहा ये कौन है? उसका भाई साथ बैठा हुआ था, कहता इदी वजह तो काले छित्र पे। मैंने कहा बस यहीं पे पता लो, जब कोई दूसरे ऐसे लाइन में खड़े हैं दूसरे का, मैंने कहा आओ, कहता नहीं ये बस होगी दुआ। आपकी लाइफ खुदावन के सामने खुली किताब की तरह है। अगर वो चाहे तो आपकी बदियों को आप पर जाहिर करे, और अगर आपकी बदियों को आप पर जाहिर करता तो इसका मतलब है कि खुदा आपके गुनाहों से बेजार है। खुदावन को आपके गुनाहों और खताओं का पता है, और जब उसको पता है तो वो आपको कभी भी काबू में कर सकता है, वो कभी भी आपको घेर सकता है, वो कभी भी आपको आजमाइश में डाल सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जब उस बंदे के लिए दुआ हुई, जिस बंदे को मैंने कहा वो मेरा जानने वाला था, जब उसके लिए प्रेयर हुई तो उसकी जिंदगी के बारे में खुदा ने मुझ पर जाहिर किया, और मैंने उसको बताया। जब उसे बताया गया, मैंने कहा खुदावन ये चाहता है कि तू खादम बने। कहता पारी साहब मेरे काम लगते हैं। मैं कहा मेरे भी नहीं सीगे, लेकिन खुदा चाहता था कि मैं ये करूं, और वो मुझे इस तरफ ले आया। तो भाग जा 10 साल बाद भी तो ये खुदा यहां पर ले आएगा, और तुझे वो काम करने पड़ेंगे जो खुदावंद की मर्जी के। इसलिए बाइबल बताती खुदा तुझे उस दरख्त की मानद बना देगा जो नदी के किनारे लगा हो। और उस आयत में बड़ा खूबसूरत वादा भी है जो मेरे लिए और आपके लिए है। इस आयत को अपने मन में रख लेना, दिल के साथ बांध लेना मेरे अजीजों। क्या लिखा जी? और वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। बाइबल में लिखा है अगर आप खुदावंद की शरीयत और उसके कानून पर अमल करते हैं, आप जिस काम पे हाथ डालोगे वो काम बाबरकत होगा। उस काम को बाबरकत होना पड़ेगा, उस काम को फ्रूटफुल होना पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी में आकर उस काम को आपकी लाइफ में बाबरकत बनाएगा। हालेलुया। यूसुफ तबेलों में रहता, घोड़ों को संभालता, और बाइबल बताती वो तबेले भरना शुरू हो जाते। किसके लिए? मालक के लिए। यूसुफ के लिए नहीं, यूसुफ गुलाम ही है। वो भेड़ बकरियों पर लगाया जाता, भेड़ बकरियां बढ़ जाती। किसके लिए? यूसुफ के लिए नहीं। किसके लिए? मालक के लिए। उसकी वफादारी का सबूत है ये। आपका मालिक आपका यीशु है, और वो कहता अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। जब हम उसकी सलीब उठा लेते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं, वो मुझे और आपको किसी चीज में शर्मिंदा नहीं होने देता। क्योंकि बाइबल में लिखा है दुनिया की चीजें तुम्हें इनाम में दी जाएंगी, तुम दुनिया की चीजों की तलाश में न रहो। इस 5 मरला 10 मरला घर की तलाश में न रहो, इन गाड़ियों की तलाश में न रहो, इन पे पैसे की तलाश में न रहो। खुदावंद को याद करो, खुदावंद को पुकारो, आसमान की बादशाही को ढूंढो, दुनिया की चीजें इनाम में मिलना शुरू हो जाएंगी। बादशाहों के दिल भी खुदावंद के हाथ में। यूसुफ ने कौन सा बड़ा काम किया? यूसुफ ने कौन सी बड़ी जंग लड़ी कि वो बादशाह बन गया? कोई बता सकता है? यूसुफ खुदावंद में रास्तबाज बना। हालेलुया। बाजी इस तरफ आओ, वहां पर चले जाएं, उस तरफ चले जाएं। सैमुअल साहब तुम उधर आओ, चेयर पर बैठ जाओ, मेरे वाली चेयर पर बैठ जाएं। आप वहां पर बैठे, चेयर पर बैठ जाएं, ऊपर बैठ जाओ। यूसुफ जेल की काल कोठड़ियों में भी खुदावंद के साथ मुखलिस रहा। हम जेल की काल कोठड़ियों में नहीं हैं, हम खुली जमीन पर खुले आसमान के नीचे अगर रास्तबाज होंगे तो आप जान लो कि खुदावंद आपके लिए कितने कितने बड़े मंसूबे और प्लान रखता है। आज वो दरख्त बनना है जो नदी के किनारे लगा हो, जहां बथेरे आकर आपके पास से बरकत को हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहता है मैं तुझे वो दरख्त बनाऊंगा जो नदी के किनारे लगा हो, और आपके वसीले से कौमें बरकत पाएंगी। इब्राहिम को कहा जो तुझ पर बरकत चाहे उसे बरकत दी जाएगी, और जो तुझ पे लानत करे उस पर लानत ठहर जाएगी। आज खुदा आपको और मुझे आंख की पुतली कहता है, और कहता है जो मेरी आंख की पुतली को छेड़ेगा मैं उसे हलाक कर दूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अगर आप रास्तबाज हैं, आपकी तरफ आने वाले जादू टोने मंत्र, आपकी तरफ उठने वाला हर एक हाथ जो इब्लीस की तरफ से हो या जमीन पर से किसी हाकम की तरफ से हो, खुदा
ہر ہاتھ کو، آپ کی طرف آنے والے ہر ہاتھ کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا. اپنے آپ کو بس اس کی سپرداری میں دے، اس کے ہاتھوں میں دے، اور وہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہمیشہ سے، کل، آج، بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. خدا اپنے کلام کے وسط مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشیے. آمین. تھینک یو جیسس، تھینک یو.